I'm here with another topic of English grammar. Today's topic is tense. Tense जिसे कि हम हिंदी में काल या समय भी कह सकते हैं. What is a tense? A tense is a form of a verb. Tell us when the action was done, when it is done and when it will be done. जो टेंस होते हैं वो एक्शन के टाइम को बताते हैं कि एक्शन कब हुआ है. वर्ब की ऐसी फॉर्म होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक्शन कौन से टाइम में हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द टाइम वी कैन डिवाइड द टेंसेस इनटू 3 पार्ट्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. All these 3 tenses have 4 subdivisions: simple, continuous, perfect and perfect continuous. One by one I will discuss with you all these 4 subdivisions. So first of all I will discuss with you about present tense. Present tense shows the action of present time. Present tense जो होते हैं वो एक्शन के present time में होने का बारे में बताते हैं कि एक्शन present time में हुआ है. So let's begin with the simple present tense. Simple present tense. Simple present tense कैसे पता चलेगा? देखिए simple present tense जो होता है वो in simple present tense we do the action again and again. जो एक्शन बार बार हो रहा होता है उसको हम लेते हैं shows the action which is done regularly. जो एक्शन बार बार हो रहा होता है. For example, she goes to school daily. वह स्कूल रोजाना जाती है, डेली जाती है. तो रेगुलर हो रहा है. So this is simple present tense. Father waters the plants every day. Father plants में पानी every day डालते हैं. Regularly हो रहा है. We use simple present tense with universal truth and habitual truth. जब हम universal truth और habitual truth की बात करते हैं, then we use simple present tense. For example, the sun rises in the east. सूरज पूरब में निकलता है. यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा सच होता है, ऑलवेज ट्रूथ होता है कि सूरज पूरब में ही निकलता है. Then we use simple present tense. Stars twinkle at night. This is also universal truth. So we use simple present tense. With habitual truth, I take my exercise daily. मैं अपनी एक्सरसाइज डेली करती हूँ. तो ये हैबिट को बताना है पर्सन की. शी वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग. वह सुबह जल्दी उठती है. दिस इज ऑल्सो टेलिंग अबाउट द हैबिट ऑफ अ पर्सन, शी. सो दीज आर अबाउट वेयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखिए जब हम टेंस के बारे में जानते हैं, वी ऑल नो दैट वी मेक द सेंटेंसेस. When we make sentences, there are certain rules to make them. Sentences के बारे में हमने previous chapters में पढ़ चुके हैं कि sentences are of many kinds. Sentence जो है हमारा positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. So how we will use simple present tense in positive sentences and in negative sentences. So let's see. If a sentence, in a sentence, a subject is plural. For example, I, we, you, they. Plural है. Then we use V1 form of the verb. अब V1 form of the verb क्या होती है? V1 होती है verb की base form. जो action verbs होते हैं जैसे eat, go. There are so many action verbs. उनकी बेस फॉर्म हम यूज करते हैं जिसे हम V1 के नाम से जानते हैं. See this example. They eat one pizza daily. They प्लूरल है. Eat क्या है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. एक्शन वर्ब जो है eat वो बेस फॉर्म है. V1 होता है eat, V2 होता है ate and V3 होता है eaten. So in simple present tense we use V1 form of the verb. They eat one pizza daily. I take exercise daily. तो I के साथ ही हम V1 form of the verb use करते हैं. In positive sentences, if the subject is singular, जैसे कि he, she, it हो रहा है, we use V1 plus S और ES. V1
के साथ वर्ब की V1 फॉर्म के साथ हम उसमें s या es का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज विद हिज फ्रेंड, ही सिंगुलर है, प्ले V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज s in V1 form of the verb. So he plays with his friends. Another example is a cow moves loudly. A cow singular है, then we use moves loudly. One more example I want to discuss with you. She goes to school. She goes to school. अब यहाँ पे देखिए she क्या है, सिंगुलर है, तो she के साथ हम go V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसमें हम क्या करेंगे, es लगा देंगे। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें हम s लगाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम es लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा she goes to school, वे स्कूल जाती है। These are the rules to make a positive sentences of simple present tense. Now discuss about negative sentences. अगर सेंटेंस आपके नेगेटिव हैं तो सिंगुलर में आप क्या यूज करेंगे और प्लूरल में क्या यूज करेंगे। सी आई वी यू दे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप प्लूरल में नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट के साथ वर्ब की V1 फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट ईट पिज्जा, वे पिज्जा नहीं खाते हैं। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट, और डू नॉट के साथ प्लस V1। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि ही शी इट या किसी पर्सन का नाम है, तब हम डज नॉट प्लस V1 यूज करते हैं। अब जब हम डज नॉट लगाते हैं तो V1 में हम s या es नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट राइट स्टोरीज। अब देखिए शी क्या है, सिंगुलर है, नेगेटिव सेंटेंस है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डज नॉट, और डज नॉट जहाँ भी आएगा वहाँ पे V1 आता है, राइट, हम s या es नहीं लगाते हैं। शी डज नॉट राइट स्टोरीज। सो दीज आर द रूल्स टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस।